How many people in India in YouTube industry have more than 1 million subscribers? Starting a YouTube career is as good as starting your own startup. I reach out to more than 50 people every week on LinkedIn. आपको अगर content creator बनना है ना, आपको हार नहीं माननी है. मतलब most of the creators I know, they lose because they are not persistent. They lose because they don't have patience. A person with 1.5 million subscribers can charge anywhere between 4 lakh rupees to 6 lakh rupees for one dedicated video. For one integrated video, यही charges हो गए 2 लाख से 3 लाख रुपए. On an average, a creator in India makes 88% of the money from brand collaborations and only 12% of the money from YouTube, Google AdSense. So, thank you so much for the lovely introduction. Am I audible towards the end? Yes, perfect. So, guys, like, how's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Perfect. Now it's getting higher. So, आज हम बात करने वाले हैं पूरा कि okay, YouTube, Instagram, LinkedIn also, which is a primary platform where all of us should be active. कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे leverage करना है, and how we can also use social media in a positive way. Let's do a quick survey here, okay? How many of you are on LinkedIn as a platform? Just a quick show of hands. That's a very good number, by the way. I'm surprised. I'll just reverse it. How many of you are not on Instagram? Anyone here? Oh wow, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's also a good number. 15 people not on Instagram. That is surprising, but that's a good number here. And YouTube, I'm pretty sure, like, how many of you are not on YouTube or have never consumed content on YouTube? Okay, everyone is consuming content on YouTube. So I understand that YouTube is the most active. Then you have Instagram, and then you have LinkedIn. Can you just guess how many people in India in YouTube industry have more than 1 million subscribers? 1 million is 10 lakh subscribers. Just a random guess. कितने हो गए इंडिया में 1 million से ज़्यादा? Yeah. How much? 20,000. Okay. You can shout the answers. 10,000. Okay. Anyone? 50,000. Okay. 25,000. 1 lakh. 5,000. Okay. You'll be surprised. There is 1.5 lakhs also. There are only 1,200 creators in India having more than 1 million subscribers. This shows that, okay, YouTube as a content creation platform is difficult to crack. Now the same number 1200 was just 14 in 2014 in India. 14 से 1200 पे jump हुआ है in 7 years span of time. ये 2021 का number है 1200. 2024 का number है 2500. So 2500 creators are having more than 1 million subscribers. Now YouTube as a platform, I'll tell you, when I started my journey of creating content on YouTube, I was very shy, I was very underconfident. I didn't even know how to record a video in front of the camera. Starting a YouTube career is as good as starting your own startup. I used to share my videos with different friends and family. Like I used to just send them the link. I used to tell them that please आप share करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको बोल दो. A lot of my friends used to laugh and they used to be like कि क्या YouTube पे videos बना रहा है, CA में rank आ गई है, CFA almost खत्म होने वाला है, ACCA के 2 ही papers बचे, ये क्या YouTube पे videos बना रहे हो, क्या Instagram पे reels बनाने वाले हो and all of that. I used to get a lot of backlash, by the way. So my point is that still I took an unconventional path because I was very passionate about this. When I started YouTube, I started with videos, and in the first 6 months there was not a lot of traction. But then today, like there are 270,000 subscribers on YouTube, around 310,000 followers on Instagram, and 3 lakh followers on LinkedIn as well. So cumulatively, it's 9 lakh followers across all these 3 platforms. And this has happened only because of consistency and patience, I feel. So whenever you are like using or consuming content, go with the fact that इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, इससे मुझे क्या value मिलने वाली है. And if you also want to start improving your communication skills, because you are like in your first year right now, I assume you would be what, like 18 and 19 would be the average age here. So at 18 and 19, the biggest advantage that you have with all of you is the age, which is not there with me right now. I am 25, I feel old already. But अगर मैं 18 साल का होता और मुझे ये knowledge पता होता YouTube के बारे में या तो social media के बारे में, I would start recording videos, and that's what is going to help you improve your communication skills. The best way to improve your communication skills is by recording videos in front of a camera. आप फंबल करोगे 7 सेकंड पे करोगे, 10वें सेकंड पे करोगे, 15वें सेकंड पे करोगे, बट ये जो फंबल का जो आपका ड्यूरेशन होगा ये कम होते जाएगा द मोर फ्रीक्वेंटली यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर आपको यूट्यूब क्रिएटर नहीं भी बनना है ना, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो. उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गए, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. एंड आप पहले नर्वस हो गया. मैं जब फर्स्ट सेमिनार देने गया था तभी भी मेरा बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ गया था. एंड आई यूज्ड टू फील दैट मैं कैसे बात करूँ ऐसे 500 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने.
बट द पॉइंट इज द मोर फ्रीक्वेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड द बेटर यू नो कि ओके फंबल का आपका सेकंड कितना कम हो रहा है, दैट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू जस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दैट्स अबाउट यूट्यूब. दैट वाज माई जर्नी. आई स्टार्टेड इन May 2020 एंड 4 साल हो गए. एवरी वीक ऑफकोर्स लाइक आई हैव अ सेट प्रोसेस नाउ कि ओके अभी इतने वीडियोस एवरी वीक 2 वीडियोस जाने हैं, टॉपिक्स क्या होने चाहिए. आई हैव अ प्रॉपर टीम हु विल हेल्प मी विद कंटेंट राइटिंग, रिसर्च एंड प्रॉपर वीडियो एडिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी ये इसको टाइम लगा है, बट स्टार्टिंग में जब शुरुआत करते हैं तब सब खुद से करना पड़ता है. मीडिया अभी जैसे लिंक्डइन की बात करते हैं, लाइक लेट्स मूव ऑन टू द लिंक्डइन टॉपिक एंड देन वील टेक ऑफकोर्स लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. LinkedIn is a platform which is extremely beneficial for networking, and networking is something that I am a big fan of. मतलब the thing is that I reach out to more than 50 people every week on LinkedIn. LinkedIn पे एक add a note का सेक्शन होता है जहाँ पर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वहाँ पे एक add a note करके एक ऑप्शन आता है. add a note पे क्लिक करो एंड वहाँ पर आप बताओ आपके बारे में कि आप कौन से स्टूडेंट हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड आपने कोई इंटर्नशिप्स की है क्या पास्ट में, एंड हाउ कैन यू हेल्प द अदर पर्सन. That's the best way of networking and that's what I do every single week just to know and broaden my perspective. And मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि इससे मैंने कैसे एक पॉडकास्ट के लिए एक गेस्ट को इंटरव्यू किया था. So I reached out to Dr. Shrikant Dadar, who is the Dean of Harvard Business School, and I messaged him, I emailed him and I told him that I would want to interview you. I also reached out to him via LinkedIn, then he just sent me his email पे किया मैंने. एंड ये था 2021 का बाद जब मैंने उनको फर्स्ट ईमेल शूट किया था. ही रिस्पॉन्डेड दैट आई एम वेरी ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक राइट नाउ एंड आई वुड डू दिस सेशन विद यू मे बी इन द लेटर ईयर ऑफ माई डीनशिप. फिर मैंने ये जुलाई 2021 को मेल भेजा था, उन्होंने मना कर दिया. मैंने जनवरी 2022 को दूसरा ईमेल भेजा वेर आई टोल्ड हिम दैट आई वुड लव टू इंटरव्यू यू फॉर माई यूट्यूब चैनल. उनके असिस्टेंट ने रिप्लाई किया एंड शी सेड दैट कि सर इज़ वेरी बिजी राइट नाउ, ही वोंट बी एबल टू डू इट. आई वॉज वेरी सैड बिकॉज उन्होंने पहले हाँ बोला था और अभी उनके असिस्टेंट ने मना कर दिया. तो मैंने बोला ठीक है अभी के लिए क्या ही कर सकते हैं, बट सिंस ही हैड सेड कि हाँ मैं करूँगा कभी ना कभी, तो मैंने वापस नेक्स्ट ईयर 2023 में अप्रैल 2023 में मैंने उनको एक और ईमेल भेजा जो कि 1 साल बाद. एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वुड स्टिल लव टू होस्ट यू इफ यू हैव सम टाइम, लाइक हाफ एन आवर अगर आप स्पेयर कर सकते हो, आई वुड स्टिल लव टू होस्ट यू ऑन माई यूट्यूब चैनल. एंड देन फाइनली हिज EA रिप्लाइड कि सर इज अवेलेबल ऑन 17th July from 6:30 PM EST, which is the Eastern Standard Time. And then 17 July को finally I shot a podcast with him, which was a 2 years of consistency, like consistent journey as such. मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये LinkedIn नहीं होता तो ये मैं कर नहीं पाता, अगर persistent नहीं होता तो ये मैं कर नहीं पाता. All I'm trying to say is कि you need to be as shameless as possible when it comes to networking via LinkedIn. लोगों के प्रोफाइल पे जाओ, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, एड अ नोट डालो, वहाँ पे लिखो आपके बारे में एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद देम. एंड आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी एजेंडा होगा वो लिख देना जब भी आप LinkedIn पे रीच आउट करोगे. सो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प ऑल ऑफ यू. एंड नेटवर्किंग का एक सिंपल रूल है मेरा, बी एज शेमलेस एज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू रीचिंग आउट, बट डोंट बी डेस्परेट व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग अप. मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया था मेरा, तब मैंने 100 फाउंडर्स को ईमेल किया था एंड 100 में से 3 ने रिप्लाई किया था एंड मैं बहुत खुश था बिकॉज 3 लोगों ने रिप्लाई किया. आई वॉज नॉट सैड बिकॉज 97 पीपल रिजेक्टेड. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज 3 पीपल सेड कि दे आर ओके टू डू अ पॉडकास्ट विथ मी. एंड अगर आप अच्छे वे में रीच आउट करोगे, अप्रोच करोगे ना, चांसेस आर हायर कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा. बट डोंट बी डेस्परेट एट द सेम टाइम. हैव दैट मेच्योरिटी एंड हैव दैट इमोशनल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइव्स एज वेल. सो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प ऑल ऑफ यू. एंड नेटवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज अबाउट LinkedIn. इफ आई टॉक अबाउट क्रिएटर इकोनॉमी एज वेल, इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बढ़ रहा है. इंस्टाग्राम की भी मैं बात करता हूँ. For all the people who are willing to become aspiring content creators, right? Consistency and patience is something that is very important. मैं बताता हूँ, YouTube पे, like when I uploaded the first video, it just got like 100 views. In the first 1 week, it got I think 500 views. By the next 1 month, it crossed I think 5,000 views. And today that same video is at 95,000 views. So my first YouTube video got 100 weeks in a week. My last YouTube video would have got, let's say, around 50-60,000 views in 1 week. My first Instagram reel would have got 200 views within 1 week when I started Instagram. My last Instagram reel would have got, let's say, around 300k views, 400k views within 2 days. My first LinkedIn post just got around 2,000 impressions. I posted about my results. Latest LinkedIn post would be around, let's say, 1.5 lakh, 2 lakh impressions based on the statistics which are there. The point of sharing all these numbers transparently and openly with all of you is that आपको अगर content creator बनना है ना, आपको हार नहीं माननी है. मतलब मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आई नो दे लूज बिकॉज दे आर नॉट परसिस्टेंट, दे लूज बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस. बट अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, कम से कम आपको अगले 1 साल, मतलब अगले 1 साल 2 साल में लिए अगर आप कम से कम लाइक 300 वीडियोज़ भी अगर डालोगे ना इंस्टाग्राम रील पे या तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे या वगैरह, तब तक आपको हार नहीं माननी है.
अगेन पॉडकास्ट में ऑल्सो लाइक आई हैव शॉट मोर देन 105 एपिसोड्स एंड आई हैव नाउ रियलाइज क्योंकि क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे को क्वेश्चंस कौन से पूछने चाहिए. नाउ आई एम गेटिंग बेटर एट इट. सो इट्स लाइक अगर आप एक चीज़ बहुत बार करोगे ना तो then you will compound. That is the power of compounding. And lastly, like just talking about the money part, because I mentioned कि कितना लोग कितना पैसा कमाते हैं, ये सबसे स्माइल आ गई सबके फेसेस में कि कितने क्रिएटर्स कितना पैसा कमाते हैं. मैं आपको बता देता हूँ एक जस्ट रफ आइडिया कि कितने चार्जेस होते हैं. लाइक जस्ट अगेन दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड नोवेयर आई एम ट्राइंग टू से कि सबको कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाहिए इस पैसों की वजह से, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ बॉलपार्क सो यू अंडरस्टैंड द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. हाउ मेनी ऑफ यू नो ईशान शर्मा हियर? एनी रेज ऑफ हैंड्स? So Ishan is a very dear friend of mine and he gets viral every single week nowadays because he mentioned 35 lakhs का story पता होगा आपको, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में. But let's talk about him as a creator and he was very transparent to share all the numbers on my podcast as well. A person with 1.5 million subscribers can charge anywhere between 4 lakh rupees to 6 lakh rupees for one dedicated video. For one integrated video यही चार्जेस हो गए 2 लाख से 3 लाख रुपए. इंस्टाग्राम रील पे अगर 5 लाख फॉलोअर्स है और अगर ऑन एन एवरेज 3 लाख व्यूज आ रहे हैं तो एक ब्रांड को चार्ज कर सकते हैं 1 लाख टू 1.5 लाख पर ब्रांड. ये जो मेट्रिक्स है, और लिंक्डइन पे अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है और अगर आपको 50,000 इंप्रेशंस मिलते हैं ऑन एन एवरेज तो आप 25 से 40,000 रुपए चार्ज कर सकते हो. ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ ये अचीव हो सकते हैं फॉलोअर्स वाइज इन द नेक्स्ट 3 years इफ यू बिकम कंसिस्टेंट एंड वेरी मेटिकुलस अबाउट कंटेंट क्रिएशन. यूट्यूब पे जो कॉस्ट पर व्यू होता है, लेट्स से अगर एक वीडियो को 1 लाख व्यूज मिलते हैं तो वो क्रिएटर कम से कम 1.5 से 2 लाख चार्ज कर सकता है, ₹2 पर व्यू. अगर 50,000 व्यूज मिलेंगे कोई भी क्रिएटर को तो 1 लाख रुपए वो ब्रांड को चार्ज कर सकता है. इंस्टाग्राम पे द सेम नंबर इज ₹1 पर व्यू. मतलब अगर आपको एक रील के लिए 50,000 व्यूज मिलते हैं, आप एक ब्रांड को 50,000 रुपए चार्ज कर सकते हो. दैट इज द एवरेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. द थर्ड इज लिंक्डइन. अगर आपको इट इज 0.5 पर इंप्रेशन. दिस इज द अगेन द इंडस्ट्री एवरेज एंड इट माइट चेंज फ्रॉम क्रिएटर टू क्रिएटर, बट फाइनेंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. एंड अ लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स आर लेवरेजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिकॉज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द न्यू थिंग राइट नाउ बिकॉज लॉयल ऑडियंस होता है तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है. तो जैसे लाइक दैट इज द रीजन लाइक दीज आर द रेंजेस विच पीपल आर चार्जिंग एंड ऑन एन एवरेज लाइक Ishan mentioned about his income and all on social media. Yesterday Ankur Warikoo sir had come and he has also shared all his numbers on social media about how much he charges for all the like brand collaborations and all of that. There's a very beautiful Twitter thread you should see if you want to understand his unit economics as well. So इसमें major revenue होता है brand collaborations. खर्चे जो होते हैं वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन वो होते हैं एंड ये मार्जिन्स जो होते हैं लाइक 70 to 80% मार्जिन्स बिजनेस होता है जहाँ पर आपके टोटल खर्चे 20% हो गए रेवेन्यूज़ के बिकॉज एडिटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द ब्रांड चार्जेस दैट क्रिएटर्स आर मेकिंग दीज डेज. सो ये मनी के ऊपर था. सो दैट्स द काइंड ऑफ मनी विच द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स आर मेकिंग. नाउ अगेन ये इंडस्ट्री में अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है. सो इट्स लाइक कि अगर आपको क्रिएटर बनना है आपको एक पहले यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपका क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. सेकंड आपके पास ये होना चाहिए कि आप कौन से कंटेंट में नीश बनाना चाहते हो, आपकी नीश आइडेंटिफाई करनी है आपको. अभी आप लेट्स से इफ यू आर कमिंग इनटू फाइनेंस, सो फाइनेंस में बहुत सारे क्रिएटर्स भरे पड़े, आप कैसे डिसरप्ट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक. मोस्ट ऑफ योर बीटेक स्टूडेंट्स आई अज्यूम हियर, बीटेक के अगर आप लेट्स से कोई एक एआई रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाना चाहते हो या तो आप लेट्स से कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, सो ये सारे आपको देखना पड़ेगा कि इनसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर आपको ये इंडस्ट्री में कंटेंट बनाना है तो. सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड दैट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू जस्ट बिकम लाइक गुड कंटेंट क्रिएटर्स. यूट्यूब, गूगल एडसेंस भी यूट्यूब पैसा देता है एंड मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे पैसा देता है. 1000 व्यूज़ का ऑन एन एवरेज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CPM, कॉस्ट पर मिल. इसका मेरा होता है कॉस्ट पर मिल इज अराउंड $2. कॉस्ट पर मिल मतलब क्या, आप यूट्यूब चलाते हो तो एड्स आती है आपको, किसकी एड्स आती है सबसे ज़्यादा? जोमेटो, ओके. LPU ओके, LPU की एड्स आती है. what ads you are getting? Scalar, okay. what ads you are getting? आप यूट्यूब पे क्लिक करते हो, आपको अंकुर वारिको के एड्स नहीं आते क्या? और शरण 1% क्लब वगैरह. सो बेसिकली आई टेल यू, अंकुर वारिको की बात करते हैं, ओके. ना अंकुर वारिको के एड्स आते हैं यूट्यूब पे. लेट्स से यू क्लिक ऑन अ वीडियो एंड उस पर अंकुर वारिको का एड चल रहा है. नाउ अंकुर वारिको इज अ कंपनी हियर, ओके, कॉर्पोरेट. नाउ अंकुर वारिको हैज पेड सम मनी टू यूट्यूब टू शो दैट एड टू ऑल ऑफ यू गाइज, ओके. यूट्यूब डिसाइड्स कि अंकुर वारिको की जो एड है वो कौन से वीडियो पे चलानी है बिकॉज उनकी ऑडियंस 18 से 24 के बीच में वाली है, ठीक है. तो उन्होंने यूट्यूब को पैसा दिया. अभी सपोज मैं क्रिएटर हूँ और मैंने एक वीडियो बनाया और मेरे वो वीडियो पे उनका ऐड चला, तो यूट्यूब को जो पैसा मिला अंकुर वारिको ब्रांड से वो उसका 55% मेरे साथ शेयर करेंगे, ओके. तो इसका मतलब होता है CPM जो कॉस्ट पर मिल है
कॉस्ट पर मिल इज बेसिकली अ ब्रांड, अ कॉर्पोरेट, जोमेटो या तो अंकुर वारिकू या तो लेट्स से जो भी आपने बताया 1% क्लब या तो जो भी ब्रांड्स है, उन्होंने यूट्यूब को पैसा दिया एंड यूट्यूब उसमें से 55% क्रिएटर को दे रहा है। ब्रांड ने, जो अंकुर वारिकू ब्रांड ने जो यूट्यूब को दिया, दैट इज कॉस्ट पर मिल, CPM। तो अगर $2 का है मेरे चैनल पे, मतलब ऑन एन एवरेज एक ब्रांड यूट्यूब को 160 रुपीज़ दे रहा है 1000 व्यूज़ के ऊपर। फॉर एवरी 1000 व्यूज़ यूट्यूब इज गेटिंग 160 रुपीज़ फ्रॉम द ब्रांड। ये हो गया CPM जो अंकुर वारिकू टू यूट्यूब, और यूट्यूब टू कुशल लोढ़ा हो गया RPM विच इज रेवेन्यू पर मिल। एंड 160 में से 55% जो है, 50% मान के जाओ फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशंस, 50% 80 रुपये मेरे पास आते हैं एज अ क्रिएटर, ठीक है। तो हर 1000 व्यूज़ के लिए मुझे आज के इंडस्ट्री में $1.2 मिलता है विच इज़ 100 रुपीज़। तो अगर मेरे चैनल पे 10,000 व्यूज़ हो गए तो मुझे मिलेगा 1000 रुपये। अगर 1 लाख व्यूज़ हो गए तो मुझे मिलेगा ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये। ये यूट्यूब देता है। अभी मैं आपको एक और स्टेटिस्टिक बताता हूँ। ऑन एन एवरेज a creator in India makes 88% of the money from brand collaborations and only 12% of the money from YouTube Google AdSense। तो आप मैच कर लो कि अगर कोई भी बंदा YouTube Google AdSense से 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, तो आप देख लो कि ये 10-12% ही होगा। मतलब मेजॉरिटी 90% इज गोइंग टू बी फ्रॉम ब्रांड कोलैबोरेशंस ओनली, बिकॉज गूगल एडसेंस लाइक यूट्यूब से बहुत, मतलब ये बहुत कम पैसा है एज कम्पेयर टू US, and that's why creators are now heavily monetizing through brand collaborations itself. So that is the number which I just wanted to share with all of you. And yeah, I think this is all about the social media world. So just to like summarize my talk, I would request all of you to start recording videos, start improving your communication skills right from day one. Talk to everyone, network, be as shameless as possible when it comes to reaching out. I feel that networking is more like dating, honestly. मतलब इसमें क्या, you have to be as shameless as possible when it comes to reaching out, but don't be desperate वरना वो मना कर देगी। तो आपको बेसिकली डेस्परेट नहीं होना है, आपको बस शेमलेस होना है कि आप ठीक है बोल दो, बट उसके बाद डेस्परेशन कंट्रोल करो, और फिर उसके बाद मतलब ऑटोमेटिकली अगर वो वाइब बैठ गया तो नेटवर्किंग हो जाएगी। सो नेटवर्किंग इज मोर अबाउट लाइक रीचिंग आउट एंड डोंट ऑलवेज गो विद अ वैल्यू कि हाँ मुझे इससे क्या वैल्यू मिलेगी, मेरे को मैं क्या वैल्यू दे पाऊंगा। It's like, okay, matlab, have no agenda meetings also. I have no agenda meetings every week. I stay in a building in Mumbai where there are 8,000 residents. I message one person every week randomly just to like catch up and explore, matlab ऐसे ही बात करने के लिए कि मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या बात कर सकता हूँ and all of that. So like network as soon as possible, start improving your communication skills, start recording videos, have a LinkedIn account if you don't have, and Instagram के ऊपर भी like start recording some content and add value to your audience. And most importantly, just have fun in your life. आप यहाँ पे आए, I am very very jealous of all of you honestly. मैं कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, मैं BCom correspondence से किया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया था। But when I came here and we are also working with Rishiud University on a BBA and finance program, I realized the importance of attending a college. मतलब इतना important है, आप जो दोस्त बना रहे हो, आप जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको जो मतलब वैल्यू मिल रही है सब सेशंस से ऊपर, आई थिंक यू शुड कैपिटलाइज ऑन दैट, and that is something which will help all of you to grow as a better human being. And जो भी आपको करना है लाइफ में, you are going to achieve after a point in time. Just remember one thing, once a person's learning attitude ends, their old age starts to begin. Always have a learning attitude in your life and you are going to grow significantly. Thank you so much for patiently hearing, and open to the question.